Hello everyone. In this video, we'll be discussing about nucleus. Nucleus is the control center of the cell. ये cell का इसको brain of cell भी बोला जाता है, control center of the cell भी बोला जाता है because nucleus is the very important part of a cell. Nucleus होता क्या है? Nucleus is a double membrane structure. डबल मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली इट हैज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन एंड द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ स्पेस बिटवीन द आउटर एंड inner membrane that is known as perinuclear space. So the outer membrane or envelope remains in continuation with ER. outer membrane जो है उसके बाहर हमें मिलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर की साइड पे आ जाएगा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म. इन न्यूक्लियोप्लाज्म द क्रोमैटिन नेटवर्क इज एम्बेडेड. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म. नाउ न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है जो फ्लूइड मीडियम है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म. In nucleoplasm, the chromatin material is embedded. Chromatin material mainly DNA proteins. So the nucleus contains DNA, RNA and proteins which are both acidic and basic. Nucleus is composed of two membranes known as nuclear envelope. The outer and inner membrane are separated by a space which is known as perinuclear space. The outer membrane remains in contact with endoplasmic reticulum and the inner membrane surrounds the nuclear content, that means the nucleoplasm. At certain places, okay, like the plasma membrane, जैसे जो भी मटीरियल अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है या न्यूक्लियस से बाहर आना है, so the exchange of material cannot take place across the membrane. So for that purpose, at certain places the nuclear envelope is interrupted. मतलब कि nuclear envelope जो है, जो membranes है वो continuous नहीं है. There are small pores present in between. या हम कह सकते हैं the nuclear membrane is perforated. Like this, there is a perinuclear space between the inner and the outer membrane and the membrane is not continuous. यहाँ पे there are some pores. These pores allow the movement of substances in and out of the nucleus and obviously this pore complex, ये जो pore का structure है is not that a simple perforation. It has various cytoskeleton bodies like microtubule, microfilament. ये circular होते हैं, polygonal होते हैं, but the structure of pore is beyond our scope. अभी वो हमारे लिए इतना important नहीं है, so we are not going into that. The pores are enclosed by circular structures called annuli. The pores and annuli together constitute the pore complex. Both the membranes of the envelope are in continuity around these pores. दोनों ही membrane pores के साथ joined होती हैं. The pores help in exchange of material between the nucleoplasm and the साइटोप्लाज्म. इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल बैरियर. ये सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है बट रेगुलेट द पैसेज ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल. ये काफ़ी सारे आयंस को और मॉलिक्यूल्स को भी क्रॉस करने देता है. ड्यूरिंग अ सेल डिविजन न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स. सो यहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल बैरियर, इट इज़ अबाउट न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप एक फिजिकल बैरियर नहीं है. इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स. बट पता है न्यूक्लियस के अराउंड देर आर सर्टेन मैक्रो, कभी कभी आरएनए, कभी कभी प्रोटीन्स विच आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनका साइज बहुत बड़ा है. सो फॉर दैट रीजन दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन. वो न्यूक्लियर एनवेलप को क्रॉस करते हुए इजीली बाहर नहीं आ सकते. सो फॉर दैट रीजन वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है ताकि मेनली उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की लाइक प्रोटीन्स, आरएनए, राइबोसोम्स, उनकी मूवमेंट अक्रॉस हो सके. So during cell division, the nuclear envelope disappear and reappears during nuclear organization. I know, I hope कि माइटोसिस पढ़ते वक्त सबने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में हम बनाते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो जाती है एंड बाय द टाइम द डिवीजन इज कम्प्लीटेड ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये वापस रीइंटीग्रेट हो जाती है. So inside a nucleus, or we can say nucleoplasm, there are nucleolus, chromatin or chromosomes. Nucleolus is a spherical structure which is not separated from the rest of the nucleoplasm by a membrane. न्यूक्लियस के अंदर हम एक छोटा सा डार्क डेंस पार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. इस न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन इनक्लोज. अगर आप सेल को स्टेन करते हो तो न्यूक्लियस के अंदर हमें न्यूक्लियोलस बहुत क्लियरली नज़र आता है बिकॉज इट इज़ डेंसली कंटेनिंग डीएनए, आरएनए. ये बहुत एक्टिव साइट है. यहाँ पे डीएनए, आरएनए बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज मैक्सिमम ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज टेकिंग प्लेस हेयर. यहाँ पे आरएनएस बन रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. सो इट इज़ वेरी active and dense when stained.
न्यूक्लियोलस फॉर्म होता है स्पेसिफिक रीजन्स पे जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन NOR ऑन अ क्रोमोसोम. In the nucleolus, the rRNA is ribosomal RNA is synthesized, and the ribosomal subunits rRNA and proteins are partially assembled. The nucleoli are larger and more numerous in cells that are actively involved in protein synthesis. जो cells बहुत ज़्यादा actively involved हैं protein synthesis में, obviously उनमें इनका number जो होता है वो ज़्यादा होता है. During the resting stage of the cell, जिस time cell resting stage में है, that means the cell is not dividing, the chromosome, that means the main genetic material, is present in uncoiled or loose form. वो एक loose network thread की तरह ऐसे पड़ा हुआ है. बट वेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिविजन होनी होती है तो उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो लूज थ्रेड है, वो कंडेंस होता है और वो फॉर्म कर देता है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कंटेन DNA, RNA एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम में मेनली DNA और प्रोटीन्स होते हैं. द DNA दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन्स आर हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. The nucleus is so much important for a cell. Nucleus इतना important क्यों है? Because it contains the main thing which is the DNA, which is very much important. So for this reason nucleus के function सिर्फ यही हैं. It contains heredity information, that means DNA, chromosomes which carry information from one generation to another. Apart from that it controls all the cellular activities. जितने भी cytoplasmic functions हो रहे हैं उनको कमांड कहाँ से मिल रही है? उनको कमांड मिल रही है न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस से ही उनके लिए प्रोटीन्स या कमांड्स जो हैं RNA की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में बन के जा रही हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो अपना फंक्शन कर रहा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू फाइंड इट यूजफुल. थैंक यू सो मच.